Hello friends, welcome to my channel. So earlier I discussed on the exception handling part 1. So in part 2 today I will show you practically which type of exception occurs, when it occurs. So let's move on to this Eclipse tool. There I have a class test application. This is main class. So in this I am creating a file, like file object name, then in file I am putting the path in the string. So let's suppose in the D drive there is win folder, and under win folder there is abc.txt, means this is text file. Okay, so in try block, this is try block. Try is a keyword, try catch. So earlier in my video I told you that using try catch we handle the exception. Okay, so let's open the try block. So after curly braces I will use the file input stream. So what file input stream does, it is used to create the file. Okay, when we want to read the file, when we want to access the file, so file is text file abc.txt. so when we want to read the file we will use file input stream. Okay, so this is a class, this is a predefined class. Okay, so this is under java.io package. Okay, so in file input stream constructor, in this parenthesis I have put the file name, and my file path is under D drive, and inside D there is win folder. Under win folder there is text file. Okay, so after try block I will use the catch block. So this is my catch block starting from here. When try block is closed here, this curly brace is closing the try block. Okay, and from there I have started the catch block. So under catch block, inside catch block there is parenthesis. So inside parenthesis I have to use the exception. Okay, which type of exception can come. So I know that I am working in file streaming. So in file handling I can use exception class also. So this exception is the super class. There is a hierarchy. So this exception is the super class, and under this class there are two child class, checked exception and unchecked exception. Okay, so exception is the super class of checked exception and unchecked exception. Okay, so I can use this super class exception also, and I can use this type of exception also, like input output exception. Okay, this is a predefined class. I have to import that. Under java.io package. Okay, then inside catch block, this is a curly brace starting of catch block. So I am printing the object of exception. Okay, so there are various ways in which I can get the exception name. Okay, so let's suppose run this class. See which type of exception came in the console. This Java compiler has shown me the java.io.filenotfound exception. Okay, so file not found exception is also the class, predefined class, and this exception name I am getting from in the console is thrown by the
compiler, Java compiler. Okay, so this is checked exception because compiler has checked whether this file exists in D drive or not. So in the D drive there is no folder. I can show you. See, there is no Win folder. Okay, so if there would be the file, then this exception doesn't came. अगर फाइल पड़ी होती उस ड्राइव में विन फोल्डर के अंदर तो ये एक्सेप्शन नहीं आती. ओके, तो फाइल से रिलेटेड काम कर रहे हो तो कैच के अंदर हम इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन भी डाल सकते हैं या डायरेक्ट फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन भी डाल सकते हैं कि अगर हमें पता है कि फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आएगी, अगर इन केस फाइल नहीं पड़ी है तो कुछ भी डाल सकते हैं. एक्सेप्शन खाली एक्सेप्शन क्लास भी डाल सकते हैं क्योंकि ये सुपर क्लास है चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन की. ठीक है, अब मैंने प्रिंट क्या कराया था कैच ब्लॉक में, खाली ऑब्जेक्ट प्रिंट कराया था ना एक्सेप्शन क्लास का. ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रिंट कराया था खाली. तो अब मैं अगर एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट से मैं कोई भी मेथड लेता हूँ ई डॉट गेट मैसेज, गेट मैसेज मेथड क्या देगा मेरे को, इसने एक्सेप्शन का नाम प्रिंट नहीं करा. ठीक है, खाली डिस्क्रिप्शन प्रिंट किया कि सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड ब्रैकेट में. ओके, इसने मैसेज प्रिंट किया बस, हो गया, एक्सेप्शन नेम नहीं दिया. ओके, तो हमारे ऊपर हम कोई सा भी मेथड ले सकते हैं. हम गेट मैसेज के अलावा एक प्रिंट स्टैक ट्रेस होता है, प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड भी हम ले सकते हैं. ठीक है, तो इसमें प्रिंटलन की जरूरत नहीं होती है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ हम ऑब्जेक्ट से प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड लेते हैं. तो प्रिंट स्टैक ट्रेस का मतलब वो मैसेज का नाम, पूरा डिस्क्रिप्शन, मैसेज का नाम, एक्सेप्शन का नाम, कौन सी एक्सेप्शन आई है, और डिस्क्रिप्शन. तो एक्सेप्शन नेम और डिस्क्रिप्शन के साथ वो पूरा स्टैक ट्रेस दे देता है, यानी कि पूरी डिटेल्स दे देता है एक्सेप्शन की. ओके, लेट्स रन दिस एप्लीकेशन. सी, उसने पूरी डिटेल दे दी कि पूरा ट्रेस करके. तो पहले तो उसने बताया कि फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आई है, सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड, ये मैसेज भी दिया है. फिर उसने java.io फाइल इनपुट किस वजह से आई है वो भी पूरा ट्रेस करके दिया है कि फाइल इनपुट स्ट्रीम, यानी कि जो हमने ट्राई के अंदर ये लाइन यूज करी है ना, ये स्टेटमेंट लाइन नंबर 14 में फाइल इनपुट स्ट्रीम का, तो इसमें आई है, यानी कि इस लाइन पर आई है. फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास जो है ये, इसमें हमने फाइल का नाम ले रहे हैं जो कि फाइल प्रेजेंट नहीं है. तो इस कारण उसने वो डिस्क्रिप्शन में भी वो पूरा डिटेल दे दी कि फाइल इनपुट स्ट्रीम डॉट ओपन, जो ओपन मेथड है फाइल इनपुट स्ट्रीम का, वो नहीं हो रहा है क्योंकि फाइल नहीं पड़ी है. तो यानी कि फाइल प्रेजेंट नहीं है. तो सारी डिटेल दे दी उसने. ओके, और ये भी दे रखा है कि कौन सी लाइन है, ये फाइल इनपुट स्ट्रीम की वजह से आई है ना, तो वो लाइन नंबर भी दे दिया. तो प्रिंट स्टैक ट्रेस में पूरा हमें स्टार्टिंग पूरे होल डिटेल्स मिल जाती है, पूरी डिटेल्स एक्सेप्शन की, किस कारण आई, कौन सी लाइन पे आई. ओके, प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड से. अब सपोज करो फ्रेंड मुझे कोई दूसरी एक्सेप्शन क्रिएट करनी है, सपोज करो एरिथमेटिक एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन होती है एरिथमेटिक. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको हटा देता हूँ. एक नंबर लिया है मैंने, 8 असाइन किया है. ट्राई के अंदर मैंने डाला ये स्टेटमेंट कि वैल एक अदर वेरिएबल है जिसमें मैं नम डिवाइडेड बाय 0 कर रहा हूँ. अब कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता है, ये मैथमेटिकली प्रूव्ड है.
डिवाइड बाय 0 का मतलब वो मेरे को इंडेफिनिट मिलता है, ठीक है, इसे हम अनडिफाइंड बोलते हैं। तो एक्सेप्शन आएगी। अब कौन सी एक्सेप्शन आएगी मुझे पता नहीं है, ठीक है, मैंने कैच ब्लॉक में रखा हुआ है, मैंने ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर उस स्टेटमेंट को डाला है ट्राई के अंदर। अब अगर हम इसे रन कराएंगे तो आनी कौन सी चाहिए, रन टाइम एक्सेप्शन, जो कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन होती है। अरिथमेटिक एक्सेप्शन का मतलब जो नंबर से रिलेटेड है। सी java.lang.arithmetic एक्सेप्शन आई है, ठीक है, कौन सी लाइन पर आई है वो भी ट्रेस करके दे दिया है, लाइन नंबर 13, यानी कि ये स्टेटमेंट की वजह से आई है और इसको हमें ट्राई के अंदर रखना है, ठीक है। ट्राई ब्लॉक के अंदर वो चीज़ रखते हैं, वो स्टेटमेंट आएंगे जो एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब डिवाइड बाय 0 होता नहीं है, तो इस वजह से यहाँ से हमने वो सीधे कैच ब्लॉक के अंदर चला जाएगा क्योंकि एक्सेप्शन आई है और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। टर्मिनेट मतलब स्टॉप हो जाएगा। तो स्टैक ट्रेस उसने पूरा डिटेल दे दी एक्सेप्शन की, ठीक है। ये तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन है जो कि अनचेक्ड होती है, जो कि रन टाइम एक्सेप्शन होती है, ओके। और भी बहुत सारी एक्सेप्शन है फ्रेंड्स। अगर कोई क्लास नहीं मिलती है क्लास लोडर को, JVM जब क्लास लोड करता है उसको क्लास नहीं मिली अगर कोई क्लास पाथ में, ठीक है, क्लास पाथ मतलब SRC जो हमारा पाथ होता है, जो SRC के अंदर फिर पैकेज होते हैं, पैकेज के अंदर क्लास होती है। तो SRC रूट फोल्डर के अंदर अगर उसे नहीं मिलता है वो क्लास JVM को, तो वो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ जाएगी, जो कि कंपाइल टाइम एक्सेप्शन होती है। अर्लियर आई टोल्ड यू अबाउट थ्रू एंड थ्रोस कीवर्ड, तो मैंने कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करी है यहाँ पे, यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन, यानी कि तो वो यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन को एक्सेप्शन सुपर क्लास जो होती है उसको इनहेरिट करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो उस यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन का मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया। उस कंस्ट्रक्टर के अंदर मेरा मैसेज आ रहा है, ठीक है, जहाँ से कॉल होगा एक यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन, वहाँ से मेरा मैसेज आ रहा है प्रिंट होकर। वही मैसेज मैंने सुपर कंस्ट्रक्टर में भेज दिया। अब सुपर कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉल करता है पेरेंट क्लास को। पेरेंट क्लास कौन सी है, एक्सेप्शन क्लास, ठीक है। तो एक्सेप्शन क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा सुपर की वजह से, ओके। तो मैंने मेन क्लास में एक कंडीशन में ले रहा हूँ, सपोज करो आई की वैल्यू 12 है अभी, तो मैंने कंडीशन लगा रखी है अगर आई की वैल्यू 10 से छोटी है, यानी कि इफ आई इज लेस देन 10, तो मैं थ्रो करूँ एक्सेप्शन, थ्रो न्यू, then new, after new my user defined exception object will be created। so this is my user defined exception, और इसमें मैं string का कोई भी मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, invalid argument, ओके, ठीक है। मैंने अपना एक्सेप्शन का मैसेज कुछ भी रख सकता हूँ। और अब ये थ्रो मैंने कर दिया एक्सेप्शन, तो ये थ्रोस कीवर्ड लगाऊंगा मैं, या मैं ट्राई कैच से सराउंड करूंगा इसे, ठीक है, क्योंकि ये भी एक एक्सेप्शन है, यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन भी एक एक्सेप्शन है, तो इसको भी मैं ट्राई कैच के अंदर रखूंगा, ओके। या फिर मैं थ्रोस लगाऊंगा। तो थ्रोस कैसे लगाते हैं, कोई भी जो मेथड के आगे, अब मेन मेथड है, मेन भी मेथड है, उसके आगे थ्रोस कीवर्ड लगाया और मैंने क्या थ्रोस किया, एक यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन थ्रो करी मैंने। तो थ्रोस कीवर्ड कहाँ पे लगता है, मेथड के आगे, और थ्रोज में हम मल्टीपल एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकते हैं कॉमा करके, ठीक है, ओके। तो या मैं थ्रोस कीवर्ड लगाऊंगा, या फिर मेरे पास एक ऑप्शन है कि ये जो कस्टम एक्सेप्शन है ये भी एक्सेप्शन है, इसको ट्राई कैच के अंदर सराउंड कर दिया, ठीक है, ट्राई कैच के अंदर रख दिया इसको। तो मैंने कैच ब्लॉक में मेरी कौन सी एक्सेप्शन आई, यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन मैंने कैच कर दी, ठीक। उसने थ्रो करी, यानी कि एक कस्टम एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना। जब मैंने थ्रो किया उसे, अगर कोई इनवैलिड आर्गुमेंट आएगा तो वो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी कि कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ऑब्जेक्ट बनने का मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, मैसेज जाएगा, वो मैसेज एक्सेप्शन कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा, सुपर कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रखा है, ठीक है, वो मैसेज मेरे को प्रिंट हो जाएगा। तो मैं सपोज करो इसको रन करता हूँ, तो अभी तो कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी क्योंकि मेरी आई की वैल्यू अभी 12 है। सपोज इफ
रिक्वायरमेंट ऐसी आती है कि ये i से 10 से छोटा है i की वैल्यू, तब क्या होगा, तब से मेरा प्रिंट हो गया ना। प्रिंट स्टैक ट्रेस की मदद से मेरे को एक्सेप्शन का नेम मिला। क्या एक्सेप्शन है, कस्टम एक्सेप्शन है, यानी कि कैच ब्लॉक के अंदर मैंने कौन सी एक्सेप्शन यूज करी है, कोई क्लास यूज करी है एक्सेप्शन की, लेकिन वो यूजर डिफाइंड क्लास है, कस्टम एक्सेप्शन, ठीक है। और मेरा मैसेज क्या प्रिंट हुआ है, स्टैक ट्रेस की मदद से मेरे को, प्रिंट स्टैक ट्रेस की मदद से मेरे को मैसेज भी प्रिंट हो गया। इनवैलिड आर्गुमेंट जो कि मैंने यहाँ पे डाला है स्ट्रिंग पैरेंथेसिस में, देखो कस्टम एक्सेप्शन के अंदर मैंने स्ट्रिंग में रखा हुआ है इनवैलिड आर्गुमेंट, तो वो भी मेरे को मिल गया। और क्लास का जो किस लाइन नंबर पर आई है एक्सेप्शन, वो भी किस लाइन पर आई है, इस लाइन पे। तो ये जो मैंने थ्रो करी है फोर्सफुली एक्सेप्शन, ये भी एक एक्सेप्शन है, तो इसको भी सराउंड करना पड़ेगा ट्राई कैच के साथ, या फिर थ्रोस लगाना पड़ेगा मुझे मेथड में। अब मेथड में थ्रोस लगाने का मतलब होता है कि आप वो एक्सेप्शन को प्रोपागेट कर रहे हो, ठीक है, उस एक्सेप्शन को आप हैंडल कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि मेन मेथड जब कॉल होगा तो आपने वो एक्सेप्शन को थ्रो कर दिया है थ्रोस कीवर्ड की मदद से, ठीक है। तो प्रिंट स्टैक ट्रेस से हमें पूरा मैसेज का डिस्क्रिप्शन, डिटेल, सारी डिटेल मिल जाती है एक्सेप्शन की, ओके।